हेलो गाइस। विचार सही हो तो एक अच्छा निर्णय ले सकते हैं आप अपने जीवन में। इसलिए विचारों की पवित्रता को कभी नहीं जाने देंगे। इट्स द थॉट, इट इज अ थॉट and due to thought becomes the process of the human civilization. No civilization can progress, exist without thought. So let us have the good thought, purity in thought, so that we can take a good decision for life, for others, and for the human civilization and the mankind. Actually, for success, one appeal from you for success: walk at the speed of light. Walk at the speed of light. A speed of light, a big number, 3 × 10⁸ meter per second. And according to Einstein principle, nothing can move with the speed of light. But here is an imagination that why not to walk at the speed of light, meaning thereby we have to increase the speed of walk. We have to do more work. अगर हम ज़्यादा काम करेंगे, तेजी से काम करेंगे, अच्छे विचार से काम करेंगे, अच्छी अभिव्यक्ति से काम करेंगे, अच्छे माइंडसेट से काम करेंगे, तो जीतना ही है। ये जीत हमारी नहीं होगी, सिर्फ आपकी ही जीत नहीं होगी, बल्कि ये जीत ये अस्तित्व की होगी, पूरी मानव सभ्यता की होगी, मानव विकास की होगी। So that's why walk with the speed of light. प्रकाश के वेग से प्रकाश के साथ काम करें, और जिसका वैल्यू होता है थ्री इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। Next, for success, other attributes are: think right, speak right, and act right. Think right. Mind is the storehouse of good things as well as the bad things. I think the most crucial gift given by God and the Almighty to the mankind is the mind. And mind should not be made the dustbin of the poor quality things. That's why think positively. Assertive thinking, no negation. Faith, belief, love, that should come within our mind. हमारा माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए। Sure, our mind can be the dwelling place of both light and dark, both success and failure, both belief and disbelief, concentration or lack of concentration, failures and success. We have to train our mind to inculcate or ignite only good thing in our mind. So think right. Speak wise also. जब आप बोलते हैं, ये भी आप अच्छा बोले, because your word will decide the character and personality. So speak wise. Your word decides the character and personality. So speak wise.
हम अच्छा बोलें, बुरा नहीं बोले, असभ्य की तरह हमारे शब्द नहीं हो, हमारी जो अभिव्यक्ति हो उस अभिव्यक्ति में जितनी ध्वनि की तीव्रता चाहिए उतनी ही रहे। ऐसा नहीं हम अनावश्यक अपने आवेश को अभिव्यक्ति में दें, अपने उच्च तीव्रता को अभिव्यक्ति में दें। नहीं, हमें स्पीक राइट, सही बोलना है, एक्ट राइट। यह तो और ही महत्वपूर्ण है। हम जो काम करें, क्योंकि इफ यू एक्ट राइट यू विल गेट द गुड रिजल्ट। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो रिजल्ट आपका अच्छा होगा। अगर आप मान लो कि कोई काम करना चाहते हो, यू वांट टू टॉप इन एनी एग्जाम, और इफ यू वांट टू टॉप एज अ बिजनेस प्रोफेशनल, और यू वांट टू टॉप as a family leaders. So whether it's a professional life, whether it's a professional life or the personal life or the family life, or your interaction with the outer world, your action will decide your result. That's why act wisely. और यदि हम गांधी के विचारों को ध्यान दें तो गांधी जी हमेशा कहा करते थे, हमारा सोच, हमारी अभिव्यक्ति, हमारे कर्म तीनों में समानता होनी चाहिए। देयर मस्ट बी हार्मोनी amongst our thinking, expression and action. So for success, 3 attributes are: think right, speak wise and act right. Next, other parameters of success, say first one, determination in life. जीवन में एक निर्णय तो होना ही चाहिए। जो शुरू में मैंने कहा था कि आपका सोच अच्छा होगा तो जिंदगी के लिए बेहतर निर्णय तो ले ही सकते हैं। डिटर्मिनेशन इन लाइफ। और सेकेंड, इंटेंस हार्ड वर्क। हमने डिटरमिन कर दिया, निर्णय तो कर लिया कि हमें ये करना है, लेकिन उसके अनुरूप हमने काम नहीं किया। आप सपोज करें, मान लें आप कि आप समझते हो कि यू वांट ए गुड म्यूजिशियन, यू वांट टू बी ए गुड सिंगर, यू मे बी ए गुड क्रिकेटर, यू मे बी ए स्मार्ट प्रोफेशनल, यू मे इमेजिन टू बी ए गाय टू क्रैक सिविल सर्विसेज or any of the repeated exams, whether it is the medical sciences, space technology or defense technology. जो भी आपने बनाया, डिटरमिन तो आपने कर लिया हमें करना है, लेकिन उसके साथ आपको काम भी करना पड़ेगा। You have to work hard, you have to work smartly. और तीसरी बात यह है कि हम कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे की बात को नहीं मानते हैं, दूसरे की अवधारणा को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। जैसे अब मान लेते हैं हम कि सूरज पूरब में उगा हुआ है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, और कोई कहे कि भाई नहीं भाई हम नहीं मानते हैं ये कि सूरज पूरब में उगा हुआ है। सब लोग कह रहा है। फिर कोई कहे कि भाई रामायण में सीता माता और राम जी, तो कोई प्रूफ मांगे, भाई नो नो नो, हाउ कैन बिलीव दैट देयर वाज ए कैरेक्टर इन रामायण, राम एंड सीता माता। या और भी कैसे कई ऐसे विचार आ सकते हैं जो आप जिद पकड़ लेंगे कि नहीं हम ही सही हैं। इस पर थोड़ा सोचना है हमें अपने दिमाग में अच्छा सा वेंटिलेशन भी देना है, अपने दिमाग की खिड़की को खोल के रखना है, अपने हृदय की खिड़की को खोल के रखना है, ताकि हम जो भी अच्छी बातें हैं तो उसे भी अपने जीवन में समाहित करें। तो मैं समझता हूँ कि आवर सक्सेस विल बी वेरी क्लोज टू द सक्सेस। एंड द फर्स्ट पॉइंट डिटर्मिनेशन, second point so intense hard and smart work, and third point just to accept the ideas of others as well, right?
many more points to the success and say convert your stones into milestones. अपने पत्थर को, जीवन में आए पत्थर को, रोड़े को आप उसे सफलता में कन्वर्ट कर दो। आपने आम के लदे पेड़ पे पत्थर मारा होगा तो उस पत्थर के बदले में आपको आम आए होंगे, पत्थर नहीं आया होगा। तो कोई विषम परिस्थितियां भी आपके जीवन में आ जाए तो आम से लदे पेड़ की तरह जिस पर पत्थर लगे तो आम ही मिले, फल ही मिले, और पत्थर नहीं लौटाए। मतलब कितनी काबिलियत है आम के पेड़ में। उस तरीके से खुद को एक आम के पेड़ के रूप में रखिए कि जिंदगी में किसी कारणवश आपको अवरोध आता है, कोई आप पर पत्थर ही मारता है या किसी भी तरह का अवरोध आता है, निराशा होती है, आप जो चाहते हो नहीं होता है, और कैसे होगा? अगर आप जो चाहोगे होते चला जाएगा तो जीवन में क्या होगा? मोनोटोनस हो जाएगा। तब तो लगेगा कि आसानी सब चीजें हो जाती है। सो नेवर यू विल गेट द थिंग्स दैट यू लाइक ऑल सडन, यू हैव टू पे फॉर इट। क्योंकि माइलस्टोन्स जो होते हैं, सफलताएं जो होती हैं, इट्स नॉट फ्री, ये मुफ्त में नहीं मिलते हैं। यू हैव टू पे द प्राइस, कीमत चुकानी होती है। और कैसी कीमत? आपका समर्पण। कैसी कीमत? आपकी तैयारी। कैसी कीमत? आपका मनोबल। याद रखें कि आप में वो भी एक टैलेंट होना चाहिए, विकसित करना चाहिए आपको कि किसी भी विषम परिस्थितियों में भी, वट एवर द हार्ड सिचुएशंस दैट आर कमिंग टू यू, यू हैव टू एडमायर ऑल द सिचुएशंस एंड कन्वर्ट ऑल ऑड सिचुएशन इनटू योर एडवांटेज। लाभ में कन्वर्ट कर देना है। नेक्स्ट बात है कीप अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। टॉक्सिक पीपल का मतलब होता है जो आपको निराश करे। जैसे आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, 2 अटेम्प्ट दिया तो लोग क्या बैठेंगे, भाई थोड़ा ही होगा यार, क्या समय बर्बाद कर रहे हो, दूसरा काम कर लो, देखो वो तो 5 बार दिया था उसका नहीं हुआ यूपीएससी में। ऐसा ना कि तुम्हारे साथ वही हाल हो, चलो कुछ भी कर लो छोटा मोटा। तो टॉक्सिक पीपल का मतलब ये होता है कि जो आपके मनोबल को तोड़े, आपकी सफलता में एक किसी न किसी तरीके से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से बाधा डाले। जैसे आपको एक दोस्त का ग्रुप है, ग्रुप तो बहुत अच्छा होता है, ग्रुप स्टडी इज वेरी गुड स्टडी, बट ऑल द मेंबर्स इन ए ग्रुप मस्ट बी द गुड वन, मस्ट बी द पॉजिटिव वन, मस्ट बी द लवर ऑफ द टाइम, मस्ट बी द लवर ऑफ द कैरियर। जितने हो सारे के सारे वो अच्छे हो। लेकिन उसी में कोई आपका दोस्त है 5, क्या पढ़ रहे हो, चलो थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं। आपने शेड्यूल बनाया 2 से 5 मेंस का हाउस में टेस्ट देने का, आ गया कोई मित्र आपके ग्रुप का लेके चल दिया। या ये चीजें हो सकता है कि हमारे रिलेशन में भी हो। एवरीवेयर यू कैन फाइंड द पीपल दैट कैन नॉट फेवर यू ऑल द टाइम्स। तो ऐसे लोगों से यू शुड डेवलप द आर्ट ऑफ डीलिंग विद दोज पीपल। वैसे लोगों के साथ कैसे आप डील कर पाएंगे, कैसे, क्योंकि उनसे अलग हो नहीं सकते हैं। अगर रिलेशंस आप में है, आपके संबंधी है, तो संबंध तो कभी छूट नहीं सकते हैं। यू हैव टू बी विद देम, बट यू शुड डेवलप द टैक्ट टू डील विद such people, whether your friends, people in the society, or the family members or the relatives. You must develop the art of tackling those people so that in no case they should tell upon your moral. नेक्स्ट बात आती है सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब होता है वर्क इन डिफरेंस। वर्क in difference means there must be common minimum program. Up, you know, even in our political scenario, you find sometimes that even at the center or in the state, there is a common program best suited to more or less all the members of the so-called the parliament or the state legislatures. तो उसी तरीके से हमें डिफरेंस में भी काम आना चाहिए. मानी डिफरेंस क्या है, मन में मानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उसके बीच में भी आपको काम करते जाना है. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट.
और एक है हमारे पास कि शार्पेन योर सॉ। जैसे मुझे याद आ रहा है कि लिंकन की बात आ रही है। लिंकन ने कहा था कि अगर 8 घंटा तुम किसी पेड़ को काटने में लगाते हो तो 6 घंटा कुल्हाड़ी के धार को ठीक करो यार। I do remember the words of the Abraham Lincoln, who told, if you spend 8 hours to cut a tree, then you must spare 6 hours to sharpen your saw or the axe. यहाँ पे क्या है? हथियार के रूप में कुल्हाड़ी नहीं है, औजार नहीं है। यहाँ पर क्या है? एटीट्यूड, इमोशंस, फीलिंग्स, फेथ, डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस। So, well, you study for 8 hours, but at the same time, during the course of your study, during your study pattern, you should be very careful that in no case you should have negative attitude. You should have certain emotions, feelings. There should be no doubt, no lack of faith, no lack of determination. In no case there should be lack of confidence apart from patience and so-called perseverance. ये हमारे हथियार हैं जो कभी भी ये कमज़ोर, इनकी धार कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनकी धार अगर ठीक रहेंगे, ये सभी सारे के सारे अगर कंडीसिव रहेंगे तो नेचुरली जो हमारा जो स्टडी होगा वो में और मजबूती प्रदान होगी। और अपार्ट फ्रॉम द क्वांटम ऑफ स्टडी देयर मस्ट बी द क्वालिटी ऑफ स्टडी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एट टाइम्स यू से, कभी कभी आप बोलते हो क्या कि से he belongs to poor family, she belongs to poor family, no one in the family is officers। तो कभी आपको लगता है क्या कि कभी कभी हम गरीब हैं, हमसे नहीं होगा, और आप किसी छोटे मोटे रोजगार में चले जाते हो। आई डोंट से कि वो खराब है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि स्काई इज द लिमिट। और जब हम आसमान में छलांग ले सकते हैं तो वहाँ पे ये बात नहीं आती है कि हम धनी हैं कि अमीर है। बात सिर्फ इतनी ही आती है कि हमको छलांग लेना है। और इस जंप का संबंध कभी भी पैसे से नहीं होता है, ये हमारे एटीट्यूड से होता है, हमारी अभिवृत्ति से होता है। So whether you belongs to poor family or the rich family, whether you have scarcity, whether you have less facilities, less resources, it doesn't matter. Ultimately, what matters is your attitude. Winning attitude. अगर तुम्हें जीतना है तो जीतना है। No one can stop reaching the target what you have taken in your life. Only thing is that in no case you should harm or damage your attitude, right? Next बात है कि fundamentals should not be questions in life. Believe in God and then feel. कभी भी फंडामेंटल पर प्रश्न मत कीजिएगा। जैसे उदाहरण है कि अभी वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप इज़ गोइंग ऑन, और इसमें आई थिंक कि 17th और 18th को फाइनल होने को है बिटवीन द अर्जेंटीना एंड फ्रांस। क्या जो अर्जेंटीना के जो मेसी होंगे मैदान में घुसेंगे तो क्या बोलेंगे रेफरी से कि भाई पहले बताओ यार कि फुटबॉल के मैदान की लंबाई चौड़ाई इतनी क्यों होती है, तभी हम खेलेंगे। या एक गोलकीपर नहीं होगा, अर्जेंटीना साइड से 4 गोलकीपर होगा। किसने बनाया प्रोविजन एक गोलकीपर का? किसने बनाया हॉल का? कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं किए जाते हैं। मेसी जब मैदान में जाएंगे तो पहले इस फंडामेंटल्स का सम्मान करेंगे कि ये रूल्स है और रूल्स है, रूल्स विल नॉट बी क्वेश्चन। कोई इस पर सवाल नहीं होगा।
द सेम वे फंडामेंटल शुड नॉट बी क्वेश्चंस. गुड इज गुड एंड बैड इज गुड, बैड इज बैड. अच्छा अच्छा है, खराब खराब है. कभी प्रश्न नहीं होना चाहिए इस पे. और इसलिए मैं कहता हूं कि बिलीव इन गॉड, ईश्वर में भरोसा करो, ईश्वर को प्यार करो, खुद में भरोसा करो, खुद को प्यार करो. फिर देखो तुम्हारे अंदर की ताकत क्या करिश्मा देता है, और ईश्वर तुम्हें वही देगा जो तुम ईश्वर से चाहोगे. और बाइंड अप करते करते एक बात मैं कहूँगा कि फेल्योर्स कितनी बार होगी ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितनी बार तुम बाउंस बैक हुए ये इंपॉर्टेंट है. आपने सुना होगा थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में कि बिफोर डिस्कवरिंग इलेक्ट्रिकल बल्ब ही फेल्ड 9,999 टाइम्स. 9,999 बार एडिशन फेल हुए थे विद्युत बल्ब के आविष्कार के पहले. मतलब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए सक्सेस एंड ए फेल्यूर? Difference between success and the failure is that those who fail attempts 4 times, fails in 5th attempt and lives. And the successors of the success people attempt and do 11 attempts, fail in all 11 attempts, they take one more attempt and they succeed in 12 attempts. सफल और असफल व्यक्ति में ये अंतर है कि असफल व्यक्ति 4 प्रयास में फेल हो जाएंगे, 5वां में छोड़ देंगे, और सफल व्यक्ति 11 प्रयास लेंगे, फेल होंगे, फिर भी 12वां प्रयास लेंगे, उसमें सफल होंगे. सो सक्सेस डिपेंड्स अपॉन द एटीट्यूड दैट हाउ मेनी टाइम्स यू डू फेल एंड हाउ मेनी टाइम्स डू यू बाउंस बैक. फेल्यूर्स आर देयर, वो तो आना ही है, क्योंकि यू कैन नॉट थिंक ऑफ डे विदाउट नाइट. बगैर रात के अंधेरे का एहसास हुए तुम दिन का एहसास नहीं कर सकते हो. वैसे तो नसीब से किसी को कुछ मिल जाए, लेकिन वो अपवाद होगा. एनीथिंग कैन हैपन ड्यू टू लक, बट दिस विल बी एक्सेप्शन. रूल ऑफ द लाइफ इज दैट, जीवन का तर्क और सच यही है कि हम हारते हैं और फिर हारने के बाद ही जीतते हैं. सो दैट्स व्हाई योर कैलिबर इज defined and determined by failures. How many failures you bounce back? आपकी जो क्षमता है, कैलिबर है, इस बात से डिसाइड होता है कि आप कितनी बार फेल हुए और कितनी बार बाउंस बैक हुए. जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों, श्रद्धा है पर विश्वास नहीं, जिंदगी से प्यार नहीं, मकसद पर भरोसा नहीं, तो सफल नहीं हो सकते. सफलता के लिए ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी से प्यार करो, मकसद से प्यार करो. ये हमेशा यह याद रखना, एक ही ज़िंदगी मिली है और एक ही मकसद मिला है. कुछ करके इस दुनिया से जाओ, वैसा करके जाओ कि जाते वक्त तुम्हारे लिए जाने पर कुछ न कुछ तुम्हारे पीछे उदाहरण रह जाए. श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, यू विल गेट एवरीथिंग इन लाइफ. थैंक यू.